So reflection through concave mirror. Here is a concave mirror, and this polishing is on this side. That means this side is the reflecting surface. This is a part of curvature, and this is center of that curvature. We call it C. This point is focus, and what is the speciality of the focus? All the rays which are going parallel to the mirror will intersect at focus. Okay. Today we will discuss image formation, and for image formation we will keep objects somewhere. For convenience, we keep the object on principal axis. Object कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टडी करने के लिए हम लोग उसको principal axis पर रखेंगे. Okay. Now we will categorize the distance from pole. Like if the object is at infinity, if the object is between infinity to center, then center to focus, then focus to pole, and at these places. If the object is here, then how the image is formed, and we will make a table here. Object position and image. Okay, let us first say the object is at infinity. I will write it again. Let's give it some place. Okay, some part of it you have already studied. We will study the different locations of object, और उसका जो इमेज बनता है, उस इमेज की पोजीशन कहाँ है, उसका साइज क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, like that. So this we have already done, so we will do it very fast. First, object is at infinity. If it is at infinity, then how the rays will come? The rays will be parallel. If the rays are parallel, they will meet at focus. So the position will be at focus. Whose position? The position of image. Okay. Then what will be the size? Point. No, just point. If it is at infinity, then it will be a point size. Then nature. Nature means whether it will be real or virtual. The answer is it should be real, because the rays will actually come and intersect here like this, and they actually intersect here, and when we see it from this angle, we see that the rays are coming from this point and they are actually coming from this point, and if we put a screen here, we will get the image. यहाँ स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पर इधर की पिक्चर यहाँ बन जाएगी, स्क्रीन पे देख सकते हैं उसको, रियल पिक्चर. So this is a real in nature. Then orientation. Actually it is point size. So when we say point size, then there is no question of orientation, whether it is inward or erect. But with the real, it should always be inverted. So we write it inverted. Then we move forward towards mirror. When we move towards mirror, this is our second position. This is first position, and for first position we get here. Then this is our second position. At second position, where it is between infinity to C. C is what? Center of curvature. So it is beyond center of curvature at infinity to C. That is beyond center of curvature. If it is beyond center of curvature, then the rays will go here, come from the focus. The second ray will go from center of curvature, and it will be returned from same center of curvature. Because center of curvature के लिए हमने क्या पढ़ा है? It follows the same path, center of curvature. Okay, so where do we get? Okay, we get image here. This is one ray coming this way, and this is the other ray coming.
Now, if we put our eyes here at this place, then what do we see? One ray is coming here, one ray is coming here. So this point appears to be image. आंख में तो ये दोनों आएंगे, and we will say this is the image. Image of what? जहाँ से ये रेज आ रही है, ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है? ये पॉइंट से A से. So here we get A dash. Okay. Now, what will happen to this point P? इसकी इमेज कैसे बनाएगा? ये किसकी इमेज बनी? A की, A डैश पे. लेकिन हमको तो पूरी बॉडी की इमेज चाहिए, तो उसके लिए दो प्रिंसिपल याद रखिए. B से हमने फिर दो रे लेनी है. एक रे हमने यहाँ पे ली, that is passing through center of curvature, that is along principal axis. बताइए ये कहाँ पर वापस आएगी? The answer is it will return the same path. इधर जाएंगी और इधर ही वापस आएगी on the principal axis. तो एक चीज जिससे एंश्योर हो गई कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे. बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी. नंबर 1. दूसरा कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि AB is normal to principal axis. If AB is normal to principal axis, then A dash से जो इमेज बनेगी that should also be normal to principal axis. इसलिए हमने यहाँ से ऐसे नॉर्मल बनाया और ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो इसका नाम क्या हो गया? B dash. A dash, B dash. ये इसकी इमेज बन गई AB. इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पर B लेने से हमको क्या एडवांटेज होता है कि उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनती है. इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है. तो ये A dash B dash. Now we will study what is the position between focus and yes, this was our position number 1. Now this is position number 2. यहाँ बना focus and center. Between focus and center. Size. This size is smaller than AB. So we will write it diminished. Diminished means smaller. Nature, real. And orientation, it is inverted. Okay. Then third at C. इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं और तीसरी पोजीशन पे आते हैं. Then third position is at C itself. अब हमने C पर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया. ओके. जब C पर ऑब्जेक्ट को खड़ा किया this way, then one ray goes here, comes through focus, other goes through focus and comes parallel, and by geometry we will find out that both are meeting at this point. Okay, ये रे यहाँ से गई through focus. When it goes through focus, it becomes parallel to the principal axis and come in this direction. ये जो पैरेलल गई है ये फोकस से आई है और फोकस से आके it goes in this direction and we try to see them here. यहाँ से हमने इनको देखा. हमको देखने से ये दोनों रेज आ रही है. इमेज कहाँ बनेगा? At this point, this is the point of image. This is A dash और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया तो यहाँ पर क्या मिला हमको? B dash. So this is AB and this is A dash, B dash. ये वाला ओके. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी इमेज भी कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों का साइज कैसा है? इक्वल. So we write it here. If object is at C, then position of the image is at C. What is its size? Same size, no change. And what is its nature? Real
and inverted. एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट हो रही है हमारी आईज में आने के पहले. So this is inverted. If you put a screen here, the image will come on the screen. This is our position number 3. Now we come to position number 4. यहाँ से 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, अब 3 से थोड़ा सा हमने और मूव किया, and our position is between C and F. So that will be our position number 4. So this was 1 and this was 2, this was 3 and now we come to this 4. Okay. Where is this position? This is center of curvature C and this is focus F and the object we have placed AB between center of curvature and focus. Between C and F. If it is between C and F, then again we see parallel goes through focus. Goes through focus. The one which goes through focus becomes parallel and like this. They intersect at this point. This way. Once again, this goes parallel, reflect through focus. This is the path. The other one goes through focus, reflect होकर parallel बन गई, parallel होके यहाँ आ गई, दोनों यहाँ पर actually intersect करती है. और when we see from here, we put our eyes here and we see that they are coming from this point, so this becomes the image A dash and this is now B dash. So A dash, B dash. Now you see A dash, B dash has become larger than AB. Okay, so between C and F, so C and infinity. जब ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, इमेज इस तरफ आ रही है, दोनों एक ही पोजीशन में कब थे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये इससे इधर गया, इमेज इधर आ गया. यहाँ दोनों का साइज कैसा था? इक्वल. जब ये इधर जाता है तो इमेज का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और जब ये इधर था तो इमेज का साइज छोटा. ओके, so this is between C and infinity. And what about the size? Larger. Larger के लिए हम शब्द यूज करेंगे magnified. Magnified. Nature again, real and orientation inverted. Inverted. So this is position number 4. This is 4. This was 3. This was 2. This was 1. Okay. Now we come to और इसको आगे करते हैं. जब इसको और आगे करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? Focus. And now you place it on the focus. All the rays going from focal plane will become parallel. Parallel होने से वो infinity पर ही जाकर मिलेंगे. So we get the result here 5 at focus. If we keep it at focus, then position of the image is at infinity because the rays become parallel. The size indefinitely large. Indefinitely large. The nature. So nature and orientation both will be undefined. For both of them you can use as undefined because it is at infinity distance. Undefined. Because this will be very large. Due to very large, we cannot define it. And it is at infinity.
So this is for different position of the object, we have different positions of image. इसमें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 and 5 ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा आगे जा रहा है तो इमेज यहाँ पे बन रहा था नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड नंबर 5 इज एट इंफिनिटी। इस तरह से ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज इधर आएगा। ये एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है। क्लास 12 में इस पर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट इधर जाता है, इमेज इधर आता है। ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में क्या रिलेशन है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो यहाँ पर इसका साइज कैसा है? 1। जैसे जैसे ये आगे आएगा ये इमेज इधर जाएगा और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। कहां पर जाकर दोनों बराबर हो जाएंगे? सेंटर पे, और सेंटर से इधर जाएंगे तो इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा। इस तरह से ये यहाँ चेंज होता जाएगा। सो दीज आर दी 5 पोजीशन फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को और आगे करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को और आगे करेंगे तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, सो नाउ वी विल कीप इट हियर और उसको सेपरेटली बनाते हैं। Here is concave mirror, this is focus, this is center of curvature, and we are keeping the object somewhere here. ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया AB। ओके, इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए A से one ray we have taken as parallel. The one which goes parallel reflect होके कहाँ पर जाएगी? फोकस में, तो it goes to focus. It goes like this to focus. दूसरी इमेज, दूसरी रे, सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं और फोकस से आने वाली भी ले सकते हैं। अगर हम ये लेते हैं, let us suppose it is coming from the direction of focus. ये फोकस है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में एक रे गई, जो इस डायरेक्शन में जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, because this is coming from focus. So this become parallel to principal axis. ये अब एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है और दोनों कहीं नहीं मिल रही क्योंकि दोनों डाइवर्ज हो रही है। अगर ये इस तरह से फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगा? तो आंसर है we keep our eyes here. Okay, when we keep our eyes here, the one ray is coming from this direction, the other is coming from this direction, और हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? That eyes will back to back. ये this is the common point in two directions. तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा? यहाँ पर हमको A दिखेगा। A की इमेज यहाँ दिखेगी और B की इमेज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये सीधा ही जाएगा B से। So this will become A dash B dash. A dash B dash. What is A dash B dash? It is image of AB. Okay, ये वाला. It is a special case which is between focus and pole. इसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? Where is the object? Okay, let's write it here.
object between F and O. This is object. What about image position? On other side of the mirror. What about its size? What about its size? The size is large. देख रहे हैं आप, ये छोटा है और ये इतना बड़ा है. So size is magnified. What about nature? Okay, this is virtual. Why virtual? Because the rays are not actually meeting. ठीक है? We simply have to perceive that it is at A dash. So this is virtual. Virtual है, इसलिए हम इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते. Okay, so then orientation. Is it inverted or it is direct? So the answer is it is direct. This is orientation. So if the object is between focus and pole, then we get a virtual image which is direct on the other side of the mirror and which is larger. Okay? अब देखिए लार्जर इमेज देखने के लिए कॉन्केव मिरर को कैसे यूज करना है. The answer is we must put the object between focus and pole. अच्छा, एक दूसरी पोजीशन है जिसमें हमको क्या मिलता है, मैग्नीफाइड. कहाँ पर रखना है, बिटवीन CN. लेकिन ये जो मैग्नीफाइड है, ये मैग्नीफाइड कैसा है, इन्वर्टेड. अगर हम सीधा देखना चाहते हैं एंड नॉट इन्वर्टेड, तो हमको ये पोजीशन यूज करनी पड़ेगी. फॉर दिस पर्पस that we see the object erect and magnified, this mirror is very much used in many fields. Like this is known as makeup man's mirror, because the people who are doing makeup, they have to use it. ये जो मेकअप करते हैं स्किन को इससे देखते हैं, so that any defect in the makeup will become magnified. 8-10 गुना बड़ा होकर दिखेगा जैसा पिक्चर हॉल में स्क्रीन में दिखता है. इसलिए वो पहले इसको बड़ा करके देखते. The same manner, the surgeons are using it, like dentist. If the dentist have to see inside, उसको लगा के देखेंगे. इसी तरह से जिसको इस तरह की चीजें बड़ी करके देखनी हो, वो उसको यूज करेंगे. Okay, so this is one use of this concave mirror. इसके बाद कितनी पोजीशन हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 and 6. These are the 6 position and this you must remember. इसके बाद हम लेते हैं दूसरा मिरर and that is convex mirror. Convex mirror में सिर्फ एक ही पोजीशन होती है, wherever is the object, रिजल्ट एक जैसा ही होगा, and that we will study only one position of the convex mirror. This is a convex mirror. Convex mirror में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकल लेंथ भी इधर होगी, फोकस भी इस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. पर रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, so we will keep the object on this side, anywhere on this side. Okay, so we keep an object here, AB. If this is an object, then we will see where the image is formed. A से 2 rays लेते हैं, one goes parallel and other go in the direction of focus. ये डायरेक्शन फोकस की है. ओके, फर्स्ट रे किधर जाएगी बताइए.
नीचे कि ऊपर? ऊपर, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोकस। तो ये हमने इसको ऐसे मिलाया, ये तो ये यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। It will go in this direction. What will happen to this, which is going in the direction of focus? It will become parallel. It will become parallel. Again, you see these two are diverging. दूर हो रहे हैं तो ये नहीं मिलेगी, इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ से हमने आइस से देखा तो ये इधर आइस में एंटर कर रही है, ये इधर एंटर कर रही है, तो आइस को क्या परसीव होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये दोनों जहां पर मिलते हैं। इसको बैक ट्रैक करिए और इसको बैक ट्रैक करिए, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए एंड वी सी दिस पॉइंट ए एट दिस पॉइंट ए डैश। ए हमको यहाँ ए डैश पर दिखेगा, तो बी कहाँ दिखेगा? एज जैसा पहले करते थे, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल खींचा, दिस हैज बिकम पॉइंट बी डैश। सो ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ ए। ओके, अब इसके चारों फीचर बताइए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एनीवेयर। इमेज कहाँ पर है? ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। उसका साइज कैसा है? स्मॉलर। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। पर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज द साइज? स्मॉलर। हियर हाउ वाज द साइज? लार्ज। तो अगर दीवार पर दो मिरर लगे हैं, वन इज कॉन्वेक्स एंड वन इज स्लाइटली कॉन्केव, और हमको उसको छूना नहीं है, वी हैव टू सी एंड टेल कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है, तो उसके पास जाकर खड़े हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा? जिसमें बड़ी इमेज दिखेगी वो कॉन्केव, जिसमें बड़ी इमेज दिखेगी वो कैसा है? कॉन्केव। और जिसमें छोटी दिखेगी कॉन्वेक्स। राइट। दूसरी चीज ये देखिए कि यहां से जो रेज आ रही है और यहां से जो रेज आ रही है, ये इधर से जो रेज आएंगी वो यहां ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, इधर से जो रेज आएंगी वो यहां पैरेलल हो जाएंगी। इतने से के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमको कितनी बड़ी दुनिया दिखेगी। जरा इस बात को सोचिए। यहां से ये रेज आ रही, ये रेज यहां से आ रही, इतना बड़ा एरिया, यहां से कोई भी रेज आएगी तो कहां आएगी? इसके अंदर। यहां पे हमने अपनी आंख सेट कर दी। अगर हम यहां अपनी आईज को सेट कर देते हैं तो हम कितनी बड़ी दुनिया देख सकते हैं, यहां से लेके यहां। इतनी बड़े एरिया को हम लोग इतने छोटे से में लाके देख सकते हैं। फिर से देखिए, ये ऐसे आई, फोकस की डायरेक्शन में पैरेलल हो गई, ये फोकस की डायरेक्शन में आई, पैरेलल हो गई ये। और ये जो हमारा मिरर है, ये इतना सा मिरर है, इतना बड़ा, बस। तो हमारी आंख इसके सामने आ गई, तो हमारी आंख में इसमें से हमको क्या दिखेगा? पीछे की सब चीजें दिखेगी। कितनी बड़ी, कितनी दूर तक? तो आंसर है इतने दूर तक दिखेंगी, इतने बड़े एंगल में जो भी आ जाए। सो दिस इज ए वेरी लार्ज विजन, वेरी लार्ज रेंज। तो इसमें क्या होता है? एक बहुत बड़े रेंज को, जो कि हमारी आईज के पीछे है, उतने बड़े रेंज को हम लोग छोटे से मिरर में देख सकते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? एज ए बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर तो हम ऑटोमोबाइल में, अपनी कार में, मोटरसाइकिल में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि एक ही जगह पर आंख रहने से हमको पीछे इतना बड़ा व्यू दिख रहा है। अगर ऐसा बड़ा व्यू लेना है तो मिरर कौन सा होना चाहिए?
that will be convex mirror. इससे पूरा पैक. So these were the concave mirror and convex mirror. और इसकी सब पोजीशन आपको याद रखनी है, कहाँ इक्वल, कहाँ छोटी, कहाँ बड़ी, कहाँ पर रियल. टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला. What is meant by mirror formula? If you place an object and see its image, image is formed at a point, the distance of object, the distance of image from the mirror and a particular relation between them. हम लोगों ने अभी देखा ऑब्जेक्ट को अगर हम स्लाइड करते हैं तो इमेज भी स्लाइड होती है, यानी दोनों के डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है. व्हाट इज दैट रिलेशन? दैट यू हैव ऑलरेडी डन. यू विल नॉट डू द प्रूफ हियर. अगर आपको प्रूफ रिवाइज करना है बुक से रिवाइज कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12. क्लास 10 में आप लोग उसको बहुत बार कर चुके हैं. यू विल सिंपली राइट दैट वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका हमने क्या नोमेनक्लेचर किया है? u. डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज v. एंड फोकस, दैट इज फोकल लेंथ, इसको क्या लिया है? f. ये सब डिस्टेंसेस हम कहां से नापते हैं? शुरू में हमने पढ़ा था इसको जब साइन कन्वेंशन पढ़े थे. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है, और उसका साइन कन्वेंशन भी हमको मालूम है. whenever we put value, the value will be put along with the proper sign. Okay, now what is the relation between v, u and f? For mirror, for spherical mirror, this is 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is the relation v, u and f. अब इमेज बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट इज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन? इट इज ए कंपैरिजन, इट इज ए रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ object. This. Okay. Now this magnification in mirror, size of image, height of image, height of object, this you can say, and this will be equal to v upon I upon O, image upon object, and this is equal to v upon minus will be there, that also you can prove. We will not do the proof here. ठीक है, ट्रायंगल बना के ज्योमेट्री से आप इसका प्रूफ निकाल सकते हैं. That I upon O is equal to minus V upon U. This is what? Magnification. और magnification के लिए हम m यूज कर सकते हैं. m. अब क्लास 12 के जो हमारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसमें जो बड़े सिंपल और बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में हमको m की वैल्यू दी जाती है और लेट अस से u की वैल्यू देते हैं और फोकल लेंथ निकालनी. व्हाट इज गिवन? m एंड u. फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ के लिए तो हमको क्या चाहिए? v और u, और हमको क्या दिया गया? m और u. तो m और u को यूज करके क्या निकालेंगे? v. उस v को यहाँ यूज करेंगे, v और u को यूज करके क्या निकलेगा? f. इस तरह से फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं. समझ आया? तो यहाँ पर आपको दोनों को कंबाइन करके न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना. वो न्यूमेरिकल भी कम आते हैं, क्लास 10 में ज्यादा आते हैं v, u और f के. इस यहाँ पर न्यूमेरिकल किस तरह के होते हैं देखिए. एक मैं आपको एग्जांपल दूं. देयर इज ए कॉन्केव मिरर एंड this is a concave mirror. It has got a focal length f and there is a insect which is moving towards the mirror. यहाँ से एक इंसेक्ट इस तरफ चलता है ऐसे और इसकी वेलोसिटी है लेट अस से वेलोसिटी v1. ये इसकी वेलोसिटी है इधर जाने की.
ओके, जब ये इस तरफ चलता है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? आंसर है if focus is here, center of curvature is here, then it will be somewhere here. यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। अब अगर ये इस तरफ जा रहा है टुवर्ड्स मिरर तो इसकी इमेज किधर जाएगी? इसकी तरफ आएगी। तो इसकी वेलोसिटी है v1 और ये इधर आ रही है 1 सेकेंड में। ये कितनी दूर आई? v2, राइट? नाउ इसकी फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ इज f। यहां पर जब हमने इसको देखा उस समय इसका डिस्टेंस यहां से है u, u पे हमने इसको देखा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मिरर एंड द इमेज इज कमिंग टुवर्ड्स इट। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो यहां पर आपको निकालना है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये क्लास 12 के स्टैंडर्ड का सम है मिरर के। सिंपल BUF निकालना नहीं आता, तो इसको आप इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए ये इसका डिस्टेंस कितना u, जब u चेंज होता है तो इसका डिस्टेंस v है, ये v भी चेंज होता है। 1 सेकेंड में जितना u चेंज होगा दैट विल बी व्हाट? वेलोसिटी। 1 सेकेंड में जितना v चेंज होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों की वेलोसिटी। तो ये दोनों की वेलोसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके दो तरीके, 2 या 3 तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है विदाउट कैलकुलस। जब ये u पोजीशन आपको पता है तो u और f को यूज करके v की पोजीशन निकालिए। आगे एक रीडिंग, उसके बाद 1 सेकेंड बाद u, 1 सेकेंड बाद ये कितनी दूर आ जाएगा? v1, u की वैल्यू चेंज हो गई। जब u की वैल्यू चेंज हो गई, u की नई, इधर ध्यान दो, u की नई वैल्यू लेके फिर से f को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? v की नई वैल्यू निकालो। v की पुरानी वैल्यू हमको मालूम थी, नई वैल्यू हमने निकाली, तो वो क्या निकलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज। निकला? तरीका समझ आया? u1 का करस्पॉन्डेंट v1 और फिर u1 प्लस वेलोसिटी, इससे फिर हमने क्या निकालना है? v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज आप निकालेंगे। अब चूंकि दोनों ऐसे जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v1 माइनस माइनस v2, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे एंड वी गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। तरीका समझ आया? लेकिन वो रिलेटिव वेलोसिटी इस जगह पर अलग होगी, इस जगह पर अलग होगी, इस जगह पर अलग होगी, और जब वो यहाँ पार करेगा, यहाँ से यहाँ ऐसा, उस समय ये यहाँ से यहाँ पार करेगा, उस समय अलग होगा। हर समय पे वेलोसिटी अलग होगी, तो वो वेलोसिटी आपको u की वैल्यू से बदलेगी। तो उसमें आपको u की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट दी वेलोसिटी। दूसरा मेथड देखिए, ओके, दूसरा मेथड है, हमारे पास रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबको इन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस विल बी v to the power -1 u to the power -1 is equal to 1/f, f to the power -1। अब इसको डिफरेंशिएट करें। v और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रेफरेंस टू टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, डिफरेंशिएट करिए, बताइए dv by dt, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा?
v to the power -2 and dv by dt। ये आ गया, ये ठीक है? ये ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए। माइनस u to the power -2 du by is equal to 0। ठीक है? अब इसमें से हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ये। और हमको क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकालना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हमारा क्वेश्चन है, the insect is at a distance of 39 centimeter and it is moving with a velocity of 5 centimeter या 2 centimeter per second। ये हमको क्या दिया गया बताइए? du by dt, velocity of object। ये हमको क्या दिया गया? u। तो हमको क्या क्या पता है यहाँ पर? u। और क्या पता है? du by dt। और हमको इसमें दिया जाएगा the mirror has a focal length something like say 20 centimeter। अगर हमको focal length दी है then u भी दिया है, f भी दिया है, what we can calculate? v। so v is also known to us, v is also known to us। उस v को हम यहाँ फिलअप कर देंगे। अब देखिए u is known, v हमने कैलकुलेट किया, du by dt हमको दिया है, क्या निकल आएगा? dv by velocity of the image at which position, जो हमने u की वैल्यू रखी at position 39। ठीक है? यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है और वो देख के आपको बनाना है। उसमें पहली पोजीशन 39, देयर आर 3 पोजीशंस। ठीक है? तो ये बनाइएगा, उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 12 में आपको आते हैं, स्पेशली ये वेलोसिटी। इसी का एक सिंपल क्वेश्चन किस तरह का आता है? ये इसके फोकल लेंथ कितनी है, इसके सामने हमने इतने डिस्टेंस पर एक पेंसिल को रख दिया लाइक, या और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर हमने एक मोबाइल को रख दिया, दैट मोबाइल इज दिस। ये मोबाइल को यहां पर रखा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? दिस इज फोकल लेंथ, इसकी इमेज बनानी है। सेंटर पर इमेज कैसी बनती है? सेम साइज इन्वर्टेड, तो यहां पर जितना लंबा ये है उतनी ही लेंथ का यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है? सेंटर से फोकस की तरफ जाते हैं तो उसकी इमेज किधर बनती है? सेंटर से इंफिनिटी की तरफ, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इधर बनेगी। और ये डिस्टेंस इधर छोटा होता है, इधर का डिस्टेंस बड़ा होता है। कैसे मालूम? सेंटर पे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? सेंटर पे, पर सेंटर से एफ तक आप आइए, इतना सा डिस्टेंस, तो फोकस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट था तो यही इमेज था, ऑब्जेक्ट इतना सा आगे आया, इमेज कहां चला गया? इंफिनिटी में, मतलब इधर बड़ी तेजी से जाता है। तो स्पीड कहां ज्यादा होती है? बियॉन्ड सी कि बिफोर सी? हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। बियॉन्ड सी स्पीड ज्यादा होती है और इधर स्पीड कम होती है। एनीवे, ये वाला डिस्टेंस अगर इतना है तो ये डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, यहाँ ये वाला बड़ा डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसका इमेज बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड। तो ये तो इतना
ही बड़ा है, ये वाला इतना बड़ा हो गया, तो ये बना मोबाइल, और ये वाली विंडो यहाँ ऐसे आ जाएगी। एंटीना यहाँ पर इसके पैरेलल है, तो एंटीना ऐसा आ जाएगा, इसके ये वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड के पैरेलल, इस तरह का मोबाइल दिखेगा। समझ आया? जैसे ही फोकस की तरफ जाते हैं चीजें बड़ी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इस तरह का इमेज बनेगा। राइट, सो क्लोज इट टुडे।